آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ شہر و اطراف میں جوش و خروش سے منائی گئی چھترپتی شیواجی مہاراج کی جینتی، مختلف پروگرامز منعقد، خراج عقیدت پیش۔ ریاستی وزیر برائے سماجی انصاف سنجے شیرساٹ نے دہلی جا کر لیا ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے کی تیاری کا جائزہ اور مصور رام ستار سے کیا تبادلہ خیال۔ سال 2012 میں شہر میں شروع کی گئی تھی DP روڈز میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی کارروائی، مگر 13 سال بعد بھی راستوں میں حائل بجلی کے کھمبے ہٹانے میں میونسپل انتظامیہ ناکام۔ متعلقہ انتظامیہ کی کارکردگی پر لگا سوالیہ نشان۔ اور شہر میں بڑھنے لگا ہے سائبر کرائم کا گراف، پھر سامنے آیا آن لائن دھوکہ دہی کا ایک معاملہ۔ 3,24,000 روپیوں کا چونا لگانے والے جعلساز کے خلاف کرانتی چوک پولیس اسٹیشن میں معاملہ درج، تحقیقات جاری۔ خبریں تفصیل سے۔ شہر و اطراف میں آج چھترپتی شیواجی مہاراج کی جینتی جوش و خروش سے منائی گئی، مختلف پروگرامز رکھے گئے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کرانتی چوک علاقے میں موجود چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے پر صبح ہی سے عقیدت مندوں کی بھیڑ امٹتی رہی اور ان کے مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لڑکے اور لڑکیوں نے روایتی لباس پہن کر، ہاتھ میں تلوار اٹھائے، ڈھول تاشوں کی لے پر جم کر رقص کیا۔ شیو پارائن، بلڈ ڈونیشن کیمپ، ان دان اور دیگر فلاحی پروگرامز بھی منعقد کیے گئے۔ 5 بڑے جلوس نکالے گئے۔ اسی طرح 95 مقامات سے جلوس کی شکل میں عقیدت مند کرانتی چوک پہنچے۔ سڈکو، ہڈکو، گارکھیڑا، والوج مہانگر، والوج اور دیگر مقامات سے لوگ جلوس کی شکل میں کرانتی چوک پہنچے۔ شہر میں 32 مقامات پر ریلیوں اور جلوس میں شامل افراد کے استقبال کے لیے اسٹیج لگائے گئے تھے۔ غرض یہ کہ آج شیو جینتی کے موقع پر نکالے گئے جلوس اور ریلیوں میں نوجوان، لڑکے، لڑکیاں اور بچے بڑی تعداد میں شامل ہوئے۔ سبھی پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ شیو جینتی پروگرام میں شرکت کی غرض سے ودھان پریشد کے اپوزیشن لیڈر امبداس دانوے دولت آباد کے قلعے پر پہنچے، جہاں شیو سینا ادھو گروپ کے بھارتیہ کامگار سینا کی جانب سے یہاں کے بھارت ماتا مندر علاقے میں شیو جینتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے امبداس دانوے نے انہیں مشورہ دیا کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں چھترپتی شیواجی مہاراج کی تعلیمات پر سختی سے عمل کیا جائے۔ چھترپتی شیواجی مہاراج کی جینتی کے موقع پر اتل ساوے اور MP سندیپان بھومرے پاٹل بھی کرانتی چوک علاقہ پہنچے اور وہاں موجود چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے پر پھول چڑھا کر ان کی تعلیمات کو یاد کیا۔ چھترپتی شیواجی مہاراج کی جینتی پر آج سرکاری، نیم سرکاری دفاتر، یونیورسٹی، کالجز اور دیگر تعلیمی اداروں میں مختلف پروگرامز منعقد کیے گئے۔ ریاستی وزیر اتل ساوے اور MP سندیپان بھومرے نے بھی اپنے حامیوں کے ساتھ آج کرانتی چوک پہنچ کر چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں بھی شیو جینتی جوش و خروش سے منائی گئی اور ایک جلوس یونیورسٹی سے نکالا گیا۔ اس جلوس میں شامل کی گئی چھترپتی شیواجی مہاراج کی تصویر پر وائس چانسلر ڈاکٹر وجے پھلاری نے پھول چڑھائے اور پھر جلوس کا آغاز ہوا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں طلباء نے شرکت کی۔ یونیورسٹی کی طالبات بھی جلوس میں شامل ہوئیں اور انہوں نے لیجم کے مختلف کرتب دکھائے۔ اس ضمن میں یونیورسٹی کے احاطے میں ڈاکٹر پرکاش پوار کا خصوصی لیکچر رکھا گیا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر وجے پھلاری کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں کارگزار وائس چانسلر ڈاکٹر والمیک سرودے، رجسٹرار ڈاکٹر پرشانت امرتکر، مینجمنٹ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر روی کرن ساونت، ڈاکٹر اپرنا پاٹل اور اسٹوڈنٹس ویلفیئر بورڈ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کیلاش امبھورے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ کریٹو انگلش اسکول میں بھی شیو جینتی آج جوش و خروش سے منائی گئی۔ اسکولی طلباء نے ان کی پوشاک پہن کر حاضرین سے داد وصول کی۔ شیو جینتی کے موقع پر منعقدہ تقریب میں میتھلی مورے، شیوراج ونارسے، ویشنوی ننورے اور ساکشی چوہان نے چھترپتی شیواجی مہاراج کی زندگی پر خوبصورت انداز میں پروگرام پیش کیے۔ پروگرام کی نظارت مادھوری شیلار نے کی۔ اسکول کے بانی صدر SP جوڑکر نے طلباء کی رہنمائی کرتے ہوئے چھترپتی شیواجی مہاراج کی زندگی اور سوراج کے قیام کے لیے ان کے یوگدان سے طلباء کو واقف کروایا۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اساتذہ، طلباء اور ان کے سرپرستوں نے بھی بھرپور تعاون دیا۔ शिवरायांच्या बद्दल काय बोलावं। शिवरायाचा 8वा प्रताप, शिवरायाचा 8वा प्रताप
अशा पद्धतीने शुगाच्या नावाचे ते एक महापराक्रमी आणि सर्व जाती धर्मांना बरोबर घेऊन जाणारा राजा, त्यांचं चरित्र अतिशय प्रेरणादायी आहे. आजही आपल्या जीवनात ते मार्गदर्शक ठरतात. शिवाजी महाराजांचं कार्य, काही महत्त्वाचे मुद्दे या ठिकाणी तुम्हाला सांगणं आवश्यक आहे. शिवाजी महाराजांनी जगामधली सगळ्यात चांगली रणनीती म्हणजे गोरिला टॅक्टिक्स. अंगणातली तुळस गोठ्यातली गाय, अंगणातली तुळस गोठ्याची गाय आणि घराची माय यांच्यावर जर कोणी बाकडी नजर टाकली त्यांची गाय केली जाणार नाही. फ्रॉम क्रिएटिंग स्कूल आणि छत्रपती संभाजीनगर. आले किती गेली किती उडून गेला भरारा, आले किती गेली किती उडून गेला भरारा, संपला नाही आणि संपणारही नाही माझ्या शुभांचा जारा. सर्वप्रथम शादी ब्याह और सैर तफरी के लिए एसटी बसेस किराए पर देने से मुतल्लिका इंतज़ामिया को 6 करोड़ 9 लाख रुपयों की आमदनी हुई है। ये इत्तला एसटी इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। आया रहे कि एसटी अपनी बसें मुख्तलिफ स्कूली तलबा की सैरो सियाहत, शादी ब्याह व दीगर प्रोग्रामों की आमद रफ्त के लिए प्रासंगिक करार के नाम पर किराए से देती है। इन्हीं ज़राए से जनवरी 2024 था नवंबर 2024 के दौरानिए में मुख्तलिफ रूट्स पर एसटी की 3218 बसों ने किराए पर अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। किराए पर बसें दिए जाने से इस दौरानिए में महामंडल को 6 करोड़ 9,33,165 रुपये की आमदनी हुई है। इस तरह का खुलासा एसटी इंतज़ामिया की जानिब से किया गया है। जोन नंबर 4 का वार्ड ऑफिस टीवी सेंटर इलाके में मुंतकिल कर दिया गया है। ये इत्तला म्यूनसिपल ज़राए ने दी है। आया रहे कि अब तक जोन नंबर 4 का ये वार्ड दफ्तर N11 में हुआ करता था, ताहम अब इस दफ्तर को टीवी सेंटर इलाके के राजीव गांधी स्टेडियम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस तब्दीली से टीवी सेंटर इलाके के साकिनान को अब वार्ड दफ्तर करीब हो गया है। चुनांचे वार्ड और खुसूसन इस इलाके के साकिनान इस सहूलत का फ़ायदा उठाएं और अपने प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी टैक्स वक्त पर अदा करें। इस तरह की अपील म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से की गई है। रियासती वज़ीर संजय शिरसाट ने दिल्ली जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की तैयारियों का जायज़ा लिया। नाजरीन, मुंबई इंदू मिल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की यादगार कायम की जा रही है, जहां उनका 350 फीट ऊंचा मुजस्समा नस्ब किया जाएगा, जिसका काम गाजियाबाद के मारूफ मुसव्विर राम सुतार को दिया गया है। रियासती वजीर संजय शिरसाट ने गाजियाबाद पहुंचकर मुजस्समा साजी का मुआयना किया। इस मौके पर मुसव्विर राम सुतार के फर्जंद सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी हर्षदीप कांबड़े, स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभय देशमुख भी मौजूद थे। रियासती वजीर संजय शिरसाट ने राम सुतार से बातचीत की और उनसे इस मुजस्समा साजी की तफसीली मालूमात हासिल की। रास्तों के तामीरी कामों में रुकावट बन रहे बिजली के खंभे आखिरकार कब हटाए जाएंगे, ये सवाल शहरियान म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से कर रहे हैं। नाजरीन, साल 2012 में उस वक्त के म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर पुरुषोत्तम भापकर ने साल 1972 के डीपी प्लान पर अमली जामा पहनाने के लिए 29 मकामात पर डीपी रोड्स में हायल मकानात को मुनहदम करते हुए रुकावटें दूर की थीं, मगर 13 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी अब तक इन रास्तों में हायल बिजली के खंभे अब तक नहीं हटाए गए हैं और अब भी शहर भर में सीमेंट रास्तों की तामीर के काम जारी हैं, मगर इन रास्तों के दरमियान भी खड़े बिजली के खंभे म्यूनसिपल इंतजामिया को मुजराते दिखाई देते हैं। इससे कबल म्यूनसिपल कारपोरेशन की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से ताउन न मिलने के सबब रास्तों में हायल इलेक्ट्रिक पोल्स हटाने में दुश्वारियां आ रही हैं और इन खंभों के सबब कुशादा सड़कें तंग दामनी की शिकायत करती रहती हैं और खंभों के सबब कुशादा रास्ते इस्तेमाल में नहीं लाए जा सकते। इसके बरक्स वो इलाके पार्किंग में तब्दील होकर रह गए हैं। इस संगीन मसले को हल करने की गर्ज से मौजूदा म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने ये ऐलान किया था कि अब ये काम म्यूनसिपल कारपोरेशन खुद करेगी, जिसके लिए डीपीडीसी से फंड तलब किया गया है। डीपीडीसी ने मज़कूरा फंड भी जारी कर दिया, मगर अब भी रास्तों में हायल बिजली के खंभे नहीं हटाए गए और लोग इन खंभों के सबब हादसात की जद पर हैं और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से पूछ रहे हैं कि आखिर रास्तों में हायल बिजली के ये खंभे कब हटाए जाएंगे। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने
अपने रिकॉर्ड रूम की जदीदकारी का फैसला किया है, जिसके तहत यहाँ से बेकार दस्तावेज़ात और फाइलें हटाई जा चुकी हैं और 172 टन कचरा वो रिकॉर्ड फ़रोख्त किया जा चुका है। इस जदीदकारी के काम के तहत रिकॉर्ड रूम की 60% फाइलें तल्फ की जा चुकी हैं। वाज़ेह हो कि कारपोरेशन जब नगर पालिका हुआ करती थी उस दौरानिए से अब तक का रिकॉर्ड इस रिकॉर्ड रूम में जमा था और इसमें हज़ारहा फाइलें ऐसी भी थीं जिनकी अब ज़रूरत ही बाकी नहीं रह गई थी, लेकिन फाइलों और कागजात के इस जम्मे गफ़ीर के सबब रिकॉर्ड रूम ओवरफ्लो हो रहा था और इस तरह यहाँ कई शोबों को तो अपना रिकॉर्ड रखने की जगह भी न बची थी। ये सूरत हाल म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के इल्म में आई तो उन्होंने लातूर के पैटर्न पर रिकॉर्ड रूम की तजदीद का फैसला किया और यहाँ की फाइलों को दर्जाबंदी करके अलग अलग किया गया और ये काम 4-5 महीनों से जारी था। दर्जाबंदी में डी जुमरे में बेकार व गैर जरूरी फाइलों को शामिल किया गया और इस बुनियाद पर उन्हें ज़ाय करने के मकसद से 172 टन रद्दी फाइलें व कागजात फरोख्त कर दिए गए, जिसमें 60% रिकॉर्ड तल्फ किए जाने का खुलासा मुतल्लिका अफसरान ने किया है। नीज इस काम को मजीद तेज रफ्तारी से अंजाम देने की हिदायत एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी है। रिकॉर्ड रूम की जदीदकारी का काम गुजरात की एक एजेंसी को दिया गया है और इस काम पर 95 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इस तरह की इत्तला भी मुतल्लिका हुक्काम ने दी है। जालना म्यूनिसिपल इंतज़ामिया भी शहर से निकलने वाले कचरे पर प्रोसेसिंग करके सेंद्रीय खाद तैयार कर रहा है। ये इत्तला मुतल्लिका इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह हो कि शहर जालना से योमिया 115 टन कचरा निकासी होती है। इस कचरे की दर्जाबंदी और सूखा गीला कचरा अलग अलग करके उसे शहर से करीबी मज़ाफ़ात सामन गांव में कायम किए गए प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट पर ले जाया जाता है और फिर यहाँ मुख्तलिफ मशीनों के जरिए इससे 4-5 स्टेज की प्रोसेसिंग के बाद मुख्तलिफ साइज में अलग अलग करके बारीक कचरे से सेंद्रीय खाद तैयार किया जा रहा है, जो ज़राअत के लिए नेचुरल और निहायत कार आमद खाद की हैसियत रखता है। आने वाले वक्तों में जालना म्यूनसिपल कारपोरेशन इस खाद की मार्केटिंग भी करेगी। इस तरह का खुलासा म्यूनसिपल ज़राए ने किया है, जबकि इस खाद को कारपोरेशन के बागात के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। इस तरह की इत्तला म्यूनसिपल कारपोरेशन की असिस्टेंट कमिश्नर सुप्रिया चौहान ने दी है। आपण जो कचरा गोळा करतो दिवसा साधारणतः 115 टीपीडी कचरा जो आहे तो गोळा केला जातो, म्हणजे 115 टन्स पर डे। आणि हा कचरा आपण सामनगावला पाठवतो। तिथे ही मशिनरी आपण इन्स्टॉल केलेली आहे आणि हा कचरा जो आहे तो मशीनच्या कन्व्हेअर बेल्टवर टाकला जातो आणि 4 ते 5 वेगवेगळ्या स्टेजमध्ये त्यांच्या साईजनुसार हा कचरा अलग केला जातो। 32 mm, 16 mm, 12 mm, 4 mm आणि 1.6 mm अशा 5 स्टेजमध्ये कचरा वेगळा केला जातो। आणि जो मोठा कचरा आहे 32 mm असेल 16 mm त्याचा सायंटिफिक लँडफिलमध्ये तो कचरा पाठवला जातो आणि जो छोटा कचरा आहे जो 1.6 mm मधून येतो बाहेर तर त्याचा वापर आपण खतासारखा करू शकतो। आपण त्याला हरित ब्रँड मिळण्यासाठी अप्लाय केलेला आहे। शिवाय माननीय आयुक्तांनी त्यातला जो खत आहे ते टॅक्स पेअरना एक पिशवी टॅक्स पे केल्यावर गिफ्ट म्हणून देण्यासाठी आदेशित केलेले आहे, तर तेही करण्याचं आपलं नियोजन आहे। जोन नंबर 2 की हदूद में 3 और जोन नंबर 1 की हदूद में 1 ऐसी प्रॉपर्टीज सील की गई हैं जिन पर 1 लाख रुपयों से ज़ायद का प्रॉपर्टी टैक्स बाकी था और मकान मालिकान प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी में टाल मटोल कर रहे थे। नाजरीन, माली साल 2024-25 को ख़त्म होने में 40 दिन बाकी बचे हैं, लिहाजा म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे की रहनुमाई में म्यूनसिपल अमले ने अपनी सारी ताकत प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के बकाया वसूल करने पर लगा रखी है। हर जोन दफ्तर की हदूद में 1 लाख से जायद प्रॉपर्टी टैक्स बकाया इमलाक की फहरिस्त तैयार की गई है और जो लोग टैक्स अदायगी में टाल मटोल कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज को सील किया जा रहा है। जोन नंबर 2 की हदूद में वाक़े ऐसी ही 3 प्रॉपर्टीज गुज़िश्ता रोज सील कर दी गई, जिन पर बितरतीब 4,68,998, 2,19,401 और 2,52,236 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए हैं। ये कार्रवाई DMC जाधव, असिस्टेंट कमिश्नर भारत बरहारे, कृष्णा ठोकड़, अशोक भोजने, शरद वाघमोड़े,
सागर सोनोने, रामचंद्र वाघमारे, रोहित चौहान, सतीश गायकवाड़, विनोद भोजने, योगेश साळवे, विशाल जोगदंड और सुधीर कोरके ने अंजाम दी है। इसी तरह जोन नंबर 1 की हुदूद में असिस्टेंट कमिश्नर संजय सोड़कर की रहनुमाई में 2,09,79 प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए एक दुकान को सील लगा दी गई। ये कार्रवाई अविनाश मद्दी, अमित रगड़े, अशफाक सिद्दीकी, विजय भालेराव, शेख नईम और गजानन मुंडे ने अंजाम दी। फर्टिलाइजर, सीड्स और पेस्टिसाइड्स बनाने वाली जय किसान एग्रोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बेस्ट एग्रीकल्चर कंपनी के एजाज़ से नवाजा गया है। कंपनी को यह एजाज़ और अवार्ड 18 फरवरी को मुंबई में मुनक़िद ग्लोबल महाराष्ट्र अवार्ड्स के प्रोग्राम में दिया गया। ये तकरीब यहाँ मुंबई में यशवंतराव चौहान सभागृह में मुनक़िद हुई। इस प्रोग्राम में 2030 तक महाराष्ट्र के तरक्याती खाके के उन्वान से एक सेमिनार भी मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात के माहिरीन को उनकी कारकर्दगी के एतराफ़ में अवार्ड दिए गए, जिसमें औरंगाबाद की मज़कूरा जय किसान एग्रोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और बीज व पीजीआर बनाने वाली कंपनी को ये बेस्ट एग्रीकल्चर कंपनी का अवार्ड दिया गया है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर MB नालकर ने नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों ये अवार्ड हासिल किया। वाज़ेह हो कि नालकर ने इस कंपनी को जीरो से उठाकर तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाया है, जिसके सबब ये अवार्ड हासिल करने पर कंपनी और उनकी कारकर्दगी की सताइश की जा रही है। शहर में ऑनलाइन धोखाधड़ी का मज़ीद एक मामला मंजर आम पर आया है, जिसमें एक शख्स को 3,24,000 रुपयों से ज़ायद का चूना लगाने वाले जालसाज के खिलाफ क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। ये वारदात अंगूरी बाग के साकिन राकेश राजू गुराले के साथ पेश आई, जिसमें किसी अजनबी ने उनसे 3,24,692 रुपये ठग लिए। तफसीलात के मुताबिक 23 मई 2024 को राकेश गुराले को एक अनजान मोबाइल नंबर से फोन आया था, जिसमें कहा गया था कि आपके नाम का क्रेडिट कार्ड आया है, इसलिए कंफर्मेशन के लिए आप अपना पैन कार्ड नंबर बतलाइए। राकेश ने बिना समझे बूझे इस अनजान शख्स को अपना पैन नंबर शेयर कर दिया। बाद अज़ां राकेश का मोबाइल नंबर हैक करते हुए एक्सिस बैंक के उनके सेविंग अकाउंट से मज़कूरा 3.25 लाख रुपए के करीब रकम निकाल ली गई थी। इस मामले में राकेश ने 12 जून 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। ताहम इस मामले में साइबर पुलिस की हिदायत पर अब कहीं जाकर क्रांति चौक पुलिस थाना में FIR दाखिल की गई है और मजीद जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर सुनील माने के सुपुर्द की गई है। जालना के सरकारी अस्पताल में गुज़िश्ता 10 माह के दौरान 48 बच्चों की अमवात का मामला मंजर आम पर आया है। वाज़ेह हो कि यूँ तो आमतौर पर यह देखा जाता रहा है कि जालना के सरकारी अस्पताल बराए ख़वातीन से अक्सर हामिला ख़वातीन को डिलीवरी वगैरह के लिए औरंगाबाद रेफ़र किए जाने की शिकायत मिलती आई हैं, तो दूसरी जानिब इस अस्पताल में मुख्तलिफ वजूहात से पिछले 10 माह में 48 बच्चों की अमवात हुई हैं। शहर के गांधी चमन पर वाक़े ज़िला अस्पताल बराए ख़वातीन में हामिला ख़वातीन और बच्चों के इलाज मालजे किए जाते हैं और ये ज़िले का वाहिद ख़वातीन अस्पताल कहलाता है। यहाँ डिलीवरी के लिए बड़ी तादाद में ख़वातीन लाई जाती हैं। ताहम निहायत मामूली वजूहात की बिना पर इस अस्पताल से हामिला ख़वातीन को यहाँ से औरंगाबाद रेफर करने की शिकायत और इल्ज़ाम अस्पताल इंतजामिया पर लगते रहते हैं। पिछले 10 माह में अस्पताल में बच्चों की 48 अमवात पर जहाँ अवाम में तशवीश का इजहार किया जा रहा है, वहीं अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि वो अपनी खिदमत पूरी जिम्मेदारी और बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। या बाबतीत हे मत तर माझ्या मते आमच्या रुग्णालयाच्या वतीने तर हे मान्य नाही केलं जाणार, कारण या रुग्णालयामार्फत अत्यंत चांगल्या प्रकारचे आम्ही प्रयत्न करत आहोत। रुग्णालयाची स्वच्छता, रुग्णालयाची सेवा, रुग्णालयात लावलेली शिस्त, प्रत्येकाच्या कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या याची जाणीव करून दिलेली आहे। म्हणजे सर्व 100% जरी प्रयत्न आम्ही करूनही जरी 100% अवलंबन होतच आहे असं गृहीत धरूनच आम्ही काम करतो, परंतु ज्यांच्या कोणाच्या हातून ह्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात चुका होतात त्यांनासुद्धा आम्ही वेळेवरच समज देतो। त्यामुळे सर्व संदर्भितच केलं जातं हे म्हणणं योग्य वाटत नाही, कारण काय समोर आकडेवारी आहे। गेल्या वर्षभराचा आपला OPDचा आकडा हा 51,660 आहे, दाखलधाऱ्यांचा आकडा हा 15,526 आहे। यावरून हे लक्षात येतं आहे आणि आत्तापर्यंत झालेल्या डिलिव्हरीज जवळपास
6,000 आहेत. यावरून लक्षात येते की आपल्या रुग्णालयामार्फत चांगली सेवा देते आणि चांगली सेवा देण्याचाही आम्ही परत प्रयत्न करत आहोत. खबरें खत्म होने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, खिराज अक़ीदत पेश। रियासती वजीर बराए समाजी इंसाफ संजय शिरसाट ने देहरी जाकर लिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की तैयारी का जायजा और मुसव्विर राम सुतार से किया तबादले ख्याल। साल 2012 में शहर में शुरू की गई थी डीपी रोड्स में हायल रुकावटें दूर करने की कार्रवाई, मगर 13 साल बाद भी रास्तों में हायल बिजली के खंभे हटाने में म्युनिसिपल इंतजामिया नाकाम। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और शहर में बढ़ने लगा है साइबर क्राइम का ग्राफ, फिर सामने आया ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक मामला। 3,24,000 रुपयों का चूना लगाने वाले जालसाज के खिलाफ क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।